Let me read the question. What you can see over here, this is from exercise 8.4. Question number 4, choose the correct option. So this work is not that much easier, which you can think that some questions are really easy and some questions are really difficult. So let us solve the all question. I am begin with the first question in that given 9x square a minus 9 square a is equals to what? So from here we are beginning our answers. So for the first one, let me write the question. They gave us sec square a minus 9 square a. So let us take 9 common from both of it. So what we are getting? We are getting sec square a minus 10 square a. Now here we will apply one identity over here. So what is our identity? We having identity is sec square a is equals to 1 plus 10 square a. This is our original identity. So how we will apply? If we are taking 10 this side, so it will become sec square a minus 10 square a, and that is equals to what? तो 10 square अगर अपनी जगह से मूव हो गया है तो यहाँ पे सिर्फ 1 रहेगा. So now what you can see over here, here is also sec square a minus 10 square a, here is also. So we will substitute that value. So what is that value? 9 into 1 means we have used identity, and original form of identity was this. Then we shifted few things, then we got as 1. So here we got answer as 9. So here we will choose this option. We will choose the option B as our correct answer. So this will be our first answer for this MCQs. Now we will read a second question and we will solve that second question, that what they are trying to say. So in a second question they gave 1 plus tan theta plus sec theta and 1 plus cot theta minus sec theta is equals to. So is equals to के बाद उन्होंने यहाँ blank दिए, means question mark is there. So how we will solve it? So let me write the question. So here we are solving. Let me make this separation too, so it is good for us. Chalo, now we will write second question, that is 1 plus tan theta plus sec theta and into bracket 1 plus cot theta minus cosec theta. So अब हम उसको इतना तो कितना यूटिलाइज करेंगे, हमारा आंसर सिर्फ या तो 0 में होगा या 1 में होगा या तो 2 होगा या -1 होगा. मीन्स हमको cos sin किसी में आंसर नहीं लाना. वी नीड आंसर इन द फॉर्म ऑफ 1 to -1 और 0. So let us make hard work. Let us do hard work. So what we will do? We will convert this tan into sin theta upon cos theta, क्योंकि हमें पता है कि tan का अनदर फॉर्म sin upon cos है. इसी तरह sec थीटा क्या है? तो वो है 1 upon cos थीटा. मीन्स वी आर कन्वर्टिंग बोथ दिस इन द फॉर्म ऑफ sin एंड cos. सो अगर हमें cot थीटा लिखना है तो वो होगा cos थीटा upon sin थीटा, एंड अगर हमें cosec थीटा लिखना होता है तो वो होता है 1 upon sin थीटा, बिकॉज इट इज इनवर्स ऑफ sin एंड sec इज इनवर्स ऑफ cos. अब हम यहाँ पे cos थीटा नहीं दिख रहा तो हम LCM ले रहे हैं cos थीटा की. मीन्स cos थीटा वी हैव टू मल्टीप्लाई ओवर हियर एंड देयर टू. So it will become cos theta plus sin theta plus this one and सबके upon में denominator, that will become cos theta. Now this is in bracket, so keep it in bracket. In another bracket वहाँ पे हम sin का LCM लेंगे तो वहाँ हो जाएगा sin theta plus cos theta. यहाँ पे -1 as it is. सबके नीचे sin theta आ गया है, so we will write it as 1. I have skipped one step. If you want to write for your concept clearance, you can write over here. You have to multiply cos theta here too and cos theta there too. Okay, and then you can write this step. Now what we will do? If they are in multiply and here one thing is there, क्या चीज़ें हैं तो हम उनको भी सेपरेट करते हैं. यहाँ दी गई है cos theta plus sin theta. In and I am separating with this plus 1 and writing cos theta. Everything we have to do it by ourselves. और ये बड़ा वाला bracket, that is I am keeping as it is. Now this one is what? This is cos theta plus sin theta. प्लस है तो कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज दे बोथ आर प्लस. उनको एक छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे एंड सेपरेट विद -1 and write over here it as sin. Now if we are multiplying, what we are getting here, this whole is a plus b and this
होल इज ए एंड दैट इज माइनस बी, क्योंकि हमारा ए सेम है, दोनों प्लस में, ये भी दोनों प्लस में, तो हमारा ए ये है और बी वन है, यहाँ पे भी बी वन। ओनली द change of sign is there, one is plus one is minus, so identity we will apply, that will be which identity, that will be a square minus b square. So what is a over here? So हमारा a है cos थीटा प्लस sin थीटा, ये पूरा मीन्स ये हमने सिर्फ किया वो है a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, so हमारा b है 1, ठीक है। कंसंट्रेट ऑन दैट। नाउ वी विल मल्टीप्लाई सिंपली बिकॉज डिनोमिनेटर में कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमने उनको सामने सामने मल्टीप्लाई किया। Then we will open it, so it will become cos square theta plus 2 cos theta into sin theta। ये कौन सी आइडेंटिटी है? तो ये आइडेंटिटी है a plus b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में है। सो अप्लाई ओवर देयर, सो इट विल बिकम sin स्क्वायर थीटा एंड दैट माइनस विल रिमेन एज इट इज एंड 1 स्क्वायर इज 1। ये पूरा ओपनिंग दी ब्रैकेट है। आंसर ऑफ दिस ओपनिंग दी ब्रैकेट इज दिस। इन डिनोमिनेटर वी विल राइट cos थीटा इनटू sin थीटा एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, इन दो को साथ में लेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो हमने आगे के लेक्चर में सीखे वी हैविंग 3 मेन आइडेंटिटी, so here we will apply identity। तो इन ब्रैकेट आई विल राइट दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या है, लेट मी राइट ओवर हियर। सो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की प्लेस पर हम 1 लिख देंगे, ठीक है। फिर ये वाला पूरा 2 cos थीटा इंटू sin थीटा एंड दैट माइनस 1 एज इट इज एंड इन डाउन द सेम cos थीटा इंटू sin थीटा। अब एक प्लस है एक माइनस है, इट मीन्स दैट दे आर मेकिंग 0। यहाँ पे बच गया 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है और नीचे भी cos थीटा इंटू साइन थीटा है, तो हम उनको काट देंगे। सो व्हाट विल रिमेन ओवर हियर, 2 विल रिमेन ओवर हियर। सो फॉर दिस क्वेश्चन C विल बी द आंसर बिकॉज वी हैविंग ऑप्शन C as 2। तो हमारा आंसर 2 है, इसीलिए वी विल मेक हाईलाइट and we will choose this option as the correct answer. I hope you understood this concept. It is in MCQ, but then also it is of 3 mark question. As you can see over here, it is 3 mark question that we can solve. How long? This is the answer of this MCQ only. ठीक है? Let us solve the third question. Let me rub over here and we will begin that. What is in third question? So they said तीसरे क्वेश्चन में दिया है sec a प्लस tan a 1 माइनस sin a इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगेन हम उसे sin cos में कन्वर्ट करना ट्राई करेंगे। तो लेट अस मेक दिस इज 1 अपॉन cos a एंड दैट इज व्हाट sin a अपॉन cos a and this one we will keeping as it is, wherever we need it we will utilize it, ठीक है। and they gave this thing as 0, okay, so we will utilize it, that after solving this what we are getting, ठीक है, okay। so let us solve first of all this। तो हमें क्या मिल रहा है, let us solve। तो यहाँ पे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज बोथ हैविंग डिनोमिनेटर एज cos, तो हियर वी विल राइट 1 प्लस sin a एंड हियर 1 माइनस sin a, यानी यहाँ से ही हिंट मिल जाती है कि एक ब्रैकेट प्लस में एक ब्रैकेट माइनस में, तो श्योरली वी विल अप्लाई इन नेक्स्ट स्टेप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो बोथ हैविंग cos मीन्स वी आर राइटिंग इट एज 1, देन वी आर मल्टीप्लाइंग, तो वो एक ही बार आएगा। अब एक है 1 प्लस साइन स्क्वायर है और एक है 1, तो यहाँ पे अप्लाई होगी a स्क्वायर माइनस यहाँ पे b है हमारा ये एंड उसका स्क्वायर एंड दैट इज अपॉन cos a। व्हाट इज द फर्दर प्रोसेस, तो इट विल बिकम 1 स्क्वायर यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a एंड अपॉन इज cos a, राइट, ठीक है। अब हम अप्लाई करेंगे आइडेंटिटी। अब हमारा आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो अगर हमें 1 माइनस चाहिए यानी ये 1 यहाँ आ रहा है तो cos उधर जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1
So cos will goes there and it will become minus cos square theta. Means on the place of 1 minus sin square theta, what we can write? So let me change in that form only. तो हम sin को उधर लेके जाते हैं. Cos square theta we are keeping as it is. We are taking sin square that side. तो sin will become minus. अब तुम्हारे लिए कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा. Because 1 minus sin square theta is there, so on that place we can write what? We can write cos square theta, and upon is that one cos theta. एक cos और एक cos, क्योंकि ऊपर दो है तो हम कट कर देंगे, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा cos थीटा. अब हम हमारे ऑप्शंस देखेंगे कि हमारे ऑप्शंस में कहीं पे ये आंसर है या नहीं. So we got here only I have applied in the form of A, so let me write in the form of A, right? So we will choose this option as our answer because we having option D as cos A. So this will be our correct answer. So as you can see over here, questions are from MCQ only. वो MCQ में से ही questions है. Will be so much of hard work we have to do because they having long kind of solution. Now we will do the fourth question. The fourth question is saying 1 plus tan square A upon 1 plus cot square A. So what we will get? जब हमें कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे तब हम एक ही चीज़ कर रहे हैं, हम उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं. सो लेट मी कन्वर्ट इट इन दी फॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे हम कन्वर्ट करेंगे वो होगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर. फिर भी हमें कोई ऑप्शन नहीं मिला, देन वी हैव टू टेक एलसीएम ओवर हियर, तो इट विल बिकम कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और ये अपॉन में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए. यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया कॉस स्क्वायर का, सो डिनोमिनेटर कॉस स्क्वायर ए. हियर आई विल टेक एलसीएम ऑफ साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर ए, और एलसीएम हमने लिया है साइन स्क्वायर ए का, तो इट विल रिमेन एज इट इज. Now what is the rule? As I told you, it is 1/2 and whole by 3/4. So 4 will multiply with that 1, means it will become 1 into 4 and 2 into 3. ठीक है? So what will multiply? So it will multiply cos square A plus sin square A into what will goes up? Sin will goes up. The sin square A is multiplying over there. ठीक है? And down we have to write what? So we have to write sin square A plus cos square A into that cos square will multiply. ये दो ब्रैकेट सेम है because both having sin as plus, sin also and cos also we cut. So here will remain sin square A by cos square A. अब हम देखते हैं sin upon cos क्या होता है, तो वो होता है tan, और दोनों के ऊपर स्क्वायर है, so it will become tan square. And from our options we will choose that which having tan square A as the answer. So here option D having answer as tan square A. So we will choose this option as the correct answer. I hope you understood. So this was the concept how to utilize the identity, whatever identity we learn till the whole chapter, means inverse also. कौन किसका inverse है, tan क्या है, sin upon cos. Then these three identities, sin square plus cos square is equals to 1. Then the sec square is equals to 1 plus tan square, and cosec square is equals to 1 plus cot square. So वो भी हमें अप्लाई करनी है, और शुरुआत में जो सीखी वो आइडेंटिटी भी हमें अप्लाई करनी है. a माइनस बी, a प्लस बी होल स्क्वायर, वैसी सारी आइडेंटिटी अप्लाई करनी है. इस तरह से हमें जो हमने अब तक सीखा है सारी आइडेंटिटी अप्लाई करते हुए वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. एंड दिस एक्सरसाइज इज, एज आई टोल्ड यू, वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बोर्ड इज आस्किंग 4 मार्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस ओनली. सो एज हियर यू कैन सी ओवर देयर, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है. क्वेश्चन 5, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच एक्सप्रेशन आर डिफाइंड. सो उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला प्रूव करके दो. Left hand side is equal to right hand side, and you can use that all the identities whatever you have learned through. So here we will start our process, and these kind of question are they are asking for the 4 marks, depend on your question 3 or 4 marks. So here both side we having this one as right hand side and this one is left hand side. किसी एक साइड को लेके चलो और दूसरी साइड प्रूव कर दो. One option we having that. अगर हमसे वैसे नहीं हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड को प्रूव करेंगे और दोनों का जो आंसर होगा वी विल
match it, and we will write right hand side is equals to left hand side. So here I am beginning with left hand side. If I am getting answer, then okay. If I am not getting, I will prove this too. So here I am beginning my process with left hand side, and that will be cosec squared cosec theta minus cot theta and its whole square. So let us, जैसे मैंने पहले बोला, हमें कभी कुछ समझ में नहीं आता, we will write it in the form of sin and cos. So here let me write in the form of 1 upon sin theta, because it is inverse of sin theta. And what is the form of cot? So that is cot theta upon sin theta, and this is whole having whole square. फर्दर ऑन अगर हम जाते हैं तो डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है. सो इट विल बिकम 1 प्लस कॉस थीटा, और डाउन में आ जाएगा साइन थीटा, एंड दी बोथ हैविंग होल स्क्वायर. सो अगर दोनों को होल स्क्वायर है तो मैं ऐसे नहीं लिख रही हूँ, मैं दोनों को स्क्वायर लगा दे रही हूँ. सो इट विल बिकम स्क्वायर एंड इट इज ऑल्सो बिकमिंग स्क्वायर. इसके आगे की प्रोसेस ये रहेगी, मैं इसको एज इट इज रहूँगी 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर को एज इट इज रहने दूंगी. साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो हमारे पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. सो इफ आई वांट्स टू राइट साइन थीटा, आई हैव टू शिफ्ट दिस, सो इट विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा 1 अपनी जगह पे. ये कॉस मूव हुआ है, तो कॉस मूव हुआ तो इट विल बिकम माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. मीन्स नाउ ऑन द प्लेस ऑफ दिस साइन स्क्वायर थीटा आई कैन राइट दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. अभी यहाँ पे कोई चीज़ मैच हो रही हो तो हम वो लिख सकते हैं. अगर मैच नहीं हो, दिस इज इन दी फॉर्म ऑफ होल स्क्वायर एंड दिस इज इन दी फॉर्म ऑफ ओनली प्योर. तो अब यहाँ पे दो चीज़ होगी. एक है कि हम यही ब्रैकेट को 2 बार लिखने की ट्राई करते हैं. तो अगर मैं लिख रही हूँ तो इट विल बिकम 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा. ठीक है, इट इज नॉट प्लस माइनस, बोथ वे हैविंग सेम साइन, एंड इट इज ऑल्सो, इट इज लाइक इफ इट इज 2 स्क्वायर व्हाट वी आर राइटिंग 2 into 2. तो इसी तरह ये पूरा ब्रैकेट है और उसका स्क्वायर है, तो वो पूरे ब्रैकेट को हम कितनी बार लिख सकते हैं, 2 टाइम्स. नाउ डाउन इज लाइक दिस एंड वी नॉट हैविंग ऑप्शन, तो वी विल सेपरेट, वी विल डू 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ताकि यहाँ पे भी आइडेंटिटी अप्लाई हो सके, और वो आइडेंटिटी होगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की. सो व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ दैट? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज व्हाट? a माइनस b, a प्लस b. Means on the place of a 1 is there, and on the place of b what is cos is there, not cos square, cos is there. So ऊपर वाला means numerator we will keep as it is. ठीक है, and down we will write in the form of a plus b, a minus b. So this one is a plus b and a minus b. Then if both are same we will cut. So simply we are getting answer as 1 minus cos theta and 1 plus cos theta. ये कट हो गया तो हमारे पास यही बच गया. अब हम उसे देखेंगे that it is 1 minus cos theta 1 plus 1 minus cos theta 1 plus, means we have proved, we have taken LHS. हम LHS लेकर चले और हमने उसको किसके इक्वल प्रूव कर दिया, RHS के, राइट हैंड साइड के. So that's why I will write that RHS is equals to LHS. So this is the end of this question. I hope you understood. यहाँ पे हमें जितनी पॉसिबल हो उतनी आइडेंटिटी और हमारा पूरा नॉलेज वॉट एवर वी लर्न इन मैथ्स ऑल वी हैव टू अप्लाई, क्योंकि ये थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं. कभी कभी ये भी पॉसिबल है कि हमेशा ये साइन अपॉन कॉस या कॉस अपॉन साइन में कन्वर्ट ना भी हो. यू हैव टू कीप इट एज इट इज एंड सॉल्व द आंसर. सो दैट इज डिपेंड ऑन द क्वेश्चन. यू नो एवरीथिंग वी कैन लर्न बाय प्रैक्टिस ओनली. सो हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, ऐसे ऐसे हमें नॉलेज गेन होगा. सो नाउ वी व्हाट वी दे गिव दिस वन एज अ लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस स्मॉल वन एज राइट हैंड साइड. यानी हमें इसे इतना सॉल्व करना है कि या तो हम आंसर ये लेके आ सके. दूसरा ऑप्शन है हम दूसरा ट्वाइस वे भी सोचते हैं. अगर हमारा आंसर ये नहीं आ रहा तो व्हाट इज सेक, दैट इज 1 अपॉन कॉस. तो या तो हम ऐसा आंसर ला लें, दोनों करेक्ट होंगे. ठीक है, बट इफ यू वांट्स टू मेक दिस आंसर लेट अस सी, क्या हमें दोनों साइड प्रूव करने की जरूरत है, और ओनली फ्रॉम वन वी कैन प्रूव. लेट मी टेक लेफ्ट हैंड साइड बिकॉज इट इज वेरी लार्ज. लेट अस कॉम्पैक्ट इट. वी कांट एनलार्ज इट बट वी कैन कॉम्पैक्ट दिस. सो लेट अस स्टार्ट बिगिन द प्रोसेस विथ लेफ्ट हैंड साइड. सो हियर माय लेफ्ट हैंड साइड इज दैट, यहाँ पे एक डिनोमिनेटर अलग है और यहाँ पूरा डिनोमिनेटर. हमें एलसीएम लेनी है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ. This will goes here and this will goes here. So cos square, cos into cos, it will become cos square a. ठीक
है। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, फिर से वो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, 2 बार है तो उसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। एंड इन डाउन व्हाट विल बिकम, दिस बोथ आर मल्टीप्लाइंग, सो कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब हमें किसी भी तरीके से इन सबको हटाना है ताकि हमारा आंसर आ जाए। सो लेट मी राइट दिस वन एज इट इज। यहाँ का हम जो कर सकते हैं वो होगा कि हम इसको पूरा ब्रैकेट ओपन करें। तो अगर हम पूरा ब्रैकेट, एंड द मेन थिंग इज दैट व्हाट आई फॉरगॉट हियर इज द प्लस साइन दैट आई हैव टू कीप, एल्स इट वाज वेरी इजियर फॉर अस, बट यहाँ पे प्लस साइन है और वही हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक था। नहीं तो ये मल्टीप्लाई में होता तो ये सब कट जाता, बट इट इज प्लस सो वी कांट कट बिकॉज दिस होल थिंग इज इन वन पैकेज एंड दिस टू आर डिफरेंट बिकॉज दे आर हैविंग मल्टीप्लाई साइन। तो ये प्लस साइन बहुत इंपॉर्टेंट था, सो इसीलिए यू हैव टू राइट कॉस स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन एंड देन होल स्क्वायर। सो कीप इट इन माइंड। अब हम इसे ओपन करेंगे, यानी यहाँ मैं आइडेंटिटी लगाऊंगी, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 साइन ए प्लस b स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर ए। I have opened this bracket, I have applied identity a plus b whole square, that will be a square plus 2ab plus b square, ठीक है। Then down we are keeping as it is, जब हमें लगेगा that brackets are same तब हम उसे कट कर देंगे। अभी साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, वापिस एक आइडेंटिटी है, ये सब आइडेंटिटी रीजन है, यहाँ मैं लिख रही हूँ दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए और ये भी प्लस में, दोनों के साथ प्लस है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है दैट इज 1, ये 1 स्क्वायर हो जाएगा 1 और ये है 2 साइन ए अपॉन दैट कॉस ए एंड 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस 1 विल बिकम 2, 2 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू ब्रैकेट 1 प्लस साइन। ओके, now 2 we will take common out in bracket, it will become 1 plus sin a, and in denominator cos a is there and it is 1 plus sin a। so अब हमें दिखाई देने लगा ये भी मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में है और ब्रैकेट सेम है तो हम उसे काट सकते हैं। सो आंसर वी गॉट एज 2 अपॉन cos a। तो जैसे मैंने बोला हम उसे भी सॉल्व कर सकते थे, अगर आपको ये वाला सॉल्व नहीं करना है तो हम इसी को लिख देंगे 2 1 upon cos a is what, sec a। So answer is 2 upon sec a. Here is also, so here we will write right hand side RHS is equals to left hand side. So this is the end of this question. I hope you understood. You have to apply so many identities.